Turn with me to 2 Timothy and chapter 3. दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय। The book of 2 Timothy and chapter 3 and verse 1. और पहला वचन। We know this verse very well. This know also that in the last days perilous times shall come. लेकिन ये जान रखो कि अंतिम दिनों में बुरे दिन आएंगे। The Amplified says like this, but understand this, that in the last days there will set in perilous times of great stress and trouble. और विस्तारित अनुवाद की बाइबल कहती है कि इस बात को समझ लो Yes. कि अंतिम दिनों में बहुत ही बुरे दिन और तनाव वाले दिन आएंगे। Perilous times of great stress and trouble. बहुत ही कष्ट के और तनाव के और बुरे दिन होंगे। Hard to deal with and hard to bear. और उन दिनों में उस बहुत कठिन होगा कार्य करने के लिए और उसको सहन करने के लिए। Forewarned his people at that time. और पौलुस ने पहले ही उस समय अपने लोगों को सूचना दे दी। And he also said about the last times. और अंतिम समय के विषय में भी बताया। Or the end times. अंतिम समय। There will set in perilous times. और वो बिगड़े हुए दिन आएंगे। Times of great stress and trouble. और वो समय बहुत ही कष्ट के होंगे, तनाव के होंगे। And saints, here these days have already set in. और ये दिन जो है वो पहले ही आ चुके हैं। Perilous times have already set in. और वो बिगड़े हुए दिन पहले ही आ चुके हैं। Times of great stress and trouble as never before is here in our time. और हमारे इस वर्तमान समय के अंदर वो दिन आ चुके हैं और ऐसी कठिनाइयां और कष्ट पहले कभी हुई। Times of great stress and trouble. बहुत ही कष्ट के दिन और तनाव के दिन। Hard to deal with and hard to bear. उनको सहन करना और उसमें कार्य करना बहुत ही things are very difficult to deal today. और आज वस्तुएं बहुत ही कठिन हो रही हैं कि उनको hard to deal and hard to bear. और उनका सहन करना भी बहुत ही कठिन हो रहा है। Or people will be lovers of self. क्योंकि लोग जो होंगे वो स्वार्थी होंगे, utterly self-centered, और पूरी रीति से वो lovers of money, और धन दौलत से प्रेम करेंगे। And aroused by an inordinate desire or greedy desire for wealth. और धन दौलत की एक तीव्र इच्छा उनमें उत्पन्न हो जाएगी। Proud and arrogant. और वो ढीठ बन जाएंगे। So it says the last days will be days difficult to bear and difficult or hard to deal. और वचन कहता है कि अंतिम दिन में काम करना बहुत ही कठिन होगा और बहुत ही कठिन बुरे दिन होंगे। Hard to bear and hard to deal. और बहुत ही कठिन होगा उनको सहन करना। So we are living in those days. और हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं। We heard last week. और पिछले सप्ताह हमने सुना about the vision of the house of God. The church is a heavenly vision. कि परमेश्वर के भवन का वो दर्शन और कलीसिया वो स्वर्गिक दर्शन है। And there are several things we heard last week. और कई और बातें भी पिछले सप्ताह हमने सुनी। And there's something slightly different God has laid upon my heart even this morning. और आज सुबह उससे कुछ थोड़ा सा विभिन्न परमेश्वर ने मेरे We are living in the last or end times. और हम उन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। Perilous times have already set in. और वो बुरे और कठिन दिन पहले ही आ चुके हैं। The days that the apostle Paul predicted, they are upon us. और वो दिन जिनको पौलुस प्रेरित ने कहा था वो हम पर आ चुके हैं। Great stress and trouble is here in our midst. और बड़ा तनाव और कष्ट हमारे बीच में है। And there are times difficult to deal and difficult to bear. और ऐसे समय जिनको सहन करना और जिसमें कार्य करना बहुत कठिन है। And in these times, it is only a God-given vision that can sustain us. और इन समयों के अंदर
केवल परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन ही हमें बनाए रख सकता है। God is doing a peculiar work in those times. परमेश्वर एक विशेष कार्य उन समयों में कर रहा है। That's one thing I want to say to us. और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, In these peculiar times, और इस विशेष समय के अंदर God is also doing a peculiar work. परमेश्वर भी एक विशेष कार्य कर रहा है। It may be the hardest of times. हो सकता है कि ये सबसे कठिन से कठिन It may be the समय हो, difficult of times. और बहुत ही मुश्किल और कठिन समय हो सकते हैं। But I wish to say in the light of God's word, at that time God is also doing a work. और मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कि उस समय परमेश्वर भी एक कार्य कर रहा है। Times when things become very strange. और ऐसे समय जब के वस्तुएं बहुत ही अजीब हो जाएंगी, Times when things are very difficult and hard. और ऐसा समय जब के वस्तुएं बहुत ही कठिन हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएंगी, Hard to deal and hard to bear. और उनको सहन करना और उनमें कार्य करना बहुत कठिन होगा। Everything seems to have thrown into a state of disturbance. और हर एक चीज जो है एक असमंजस के परिस्थिति में होगी, And there is an upheaval around us. और हमारे चारों ओर ये चीजें जो है उभर रही हैं। When there is intense pressure on you और जबकि बहुत ही तीव्र दबाव आपके ऊपर होगा, and conflicts in your life, और आपके जीवन में वो संघर्ष होंगे, in those moments, in those times, और उन क्षणों के अंदर, उस समय के अंदर, I wish to say that God is also at work. और मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर भी कार्यशील है। We need to realize this deep within us in these days, because we are living in those times. और हमें अपने मन की गहराइयों में इस बात को जान लेना है, क्योंकि हम उसी समय में रह रहे हैं। Not only that, the things are happening in the world. और ना केवल ये चीजें संसार के अंदर हो रही हैं, Pressure is going to increase on you and me. और वो दबाव आपके और मेरे ऊपर भी बढ़ता चला We जाएगा, are going to experience that stress and trouble even in our own lives. और वो कष्ट और वो तनाव हम अपने खुद के जीवनों में भी अनुभव करेंगे। We are going to experience that in our own lives. हम उसका अनुभव अपने जीवनों में भी करेंगे। Conflicting forces which are work in the world. और वो शक्तियां जो कि संसार में कार्यशील हैं, The powers in the heavenly places. और वो सामर्थ्य जो कि स्वर्गिक स्थानों में These हैं, conflicting forces are at work today, और ये शक्तियां जो है इस समय कार्यशील हैं, very intensely. और बहुत ही तीव्रता से, And terribly they will also try to come upon God's own people. और बड़े भयंकर रूप से वो परमेश्वर के लोगों पर भी आने का And all those who have focused their lives on the Lord. और वो सब जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के केंद्रित कर दिया है। And this is so true. और ये बात बहुत सच्ची है। We know that some of us are going through times in our lives. और हम जानते हैं कि हम में से कुछ अपने जीवनों में ऐसे समयों से गुजर रहे हैं। There are intense pressures in our lives. और बहुत ही तीव्र दबाव हमारे There जीवन are पर है, conflicts, संघर्ष है, disturbances. और असमंजस है। There are things that we are going through. Some of us are really going through certain situations, I know. और मैं जानता हूं कि हम में से कुछ वास्तव में इस प्रकार के संघर्षों में से गुजर रहे हैं। And when the enemy comes with such intense pressures and situations into our lives, और जब शत्रु इस प्रकार के परिस्थितियों को लेकर, तीव्र परिस्थितियों को लेकर upon आता those है, who have focused themselves upon the Lord, और वो जिन्होंने अपने आप को प्रभु के केंद्रित कर दिया है, what does the enemy want in our lives? और शत्रु हमारे जीवनों में क्या चाहता है? The enemy wants to bring upon us doubt and fear. और वो शत्रु हमारे ऊपर संदेह और भय को लाना चाहता है। This is one thing that the enemy wants to bring into us. Bring in seeds of doubt in us. और वो शत्रु चाहता है कि हमारे अंदर उस संदेह और भय के बीज वो बो दे। When doubt sets in, the next thing that will follow is fear. और जब संदेह आने लगता है तो दूसरी चीज जो उसके बाद आएगी वो भय है। So we need to be sensitive
in our own lives in these days. तो इन दिनों में अपने जीवनों के अंदर हमें बहुत ही संवेदनशील Oh, होना है। that's why we need this vision to be before our eyes in these days. और इसी कारण So से clear. हमें चाहिए कि ये दर्शन हमारे आंखों के सामने स्पष्टता से हो। The enemy would try to bring in doubt and then fear into our hearts. और शत्रु वो संदेह और भय हमारे हृदयों में लाएगा, And then he will drag us to a place. और तब वो हमें एक स्थान में घसीट ले जाएगा। What place is that? और वो कौन सा A स्थान है? place wherein you will say, Lord, how is this possible in my life? और एक ऐसा स्थान जहां पर के आप कहेंगे, प्रभु ये मेरे जीवन में कैसे संभव You है? know, we begin to doubt the Lord and we begin to have expressions of doubt. और हम प्रभु पर भी संदेह करने लगेंगे, और वो अभिव्यक्ति या बातें करने लगेंगी जो संदेह भरी होंगी। Yes. We need to take heed, saints of God. इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत ही होशियार हो जाएं, We are संवेदनशील हो जाएं। living in these perilous times. हम इस बिगड़े हुए समय में जी रहे हैं, Things have set in already. और वस्तुएं पहले ही आ चुकी हैं। Times of stress and trouble. और वो समय जो कि बहुत ही तनाव और कष्ट का है। You know, we are not to break under this stress and trouble. और हमें इस दबाव और तनाव के नीचे दब नहीं जाना है, या अपने आप को तोड़ना True, नहीं। it is difficult and hard to bear and deal, but we are not to break down under the pressure and these troubles. और इस तनाव और इन चीजों से कार्य करना बहुत कठिन है, लेकिन हमने इन कष्टों के नीचे टूटना नहीं है। You know, we heard a word on the first early morning. और पहली तारीख की सुबह ही हमने एक वचन सुना, You know, and that's what the Lord spoke to us. और वही प्रभु ने हमसे बात की How the enemy will try to come in कि किस प्रकार से वो शत्रु और बैरी आएगा, with the very darkness, if possible, over our lives and what we offer to God. और वो अंधकार को हमारे जीवनों पर डालना चाहेगा। But we need to. परंतु हमें चाहिए, We need to know that हमें ये बात जान लेनी है that we have a greater purpose ruling our lives. कि एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य हमारे जीवनों पर नियंत्रण कर रहा You है। know, so we would come to times where, you know, the enemy would want us to doubt the Lord. और हम ऐसे समय में आएंगे जहां पर शत्रु चाहेगा कि हम प्रभु पर संदेह करने The लगें, way that we are walking may become exceedingly difficult. और वो जिस प्रकार से हम चल रहे हैं वो मार्ग बहुत ही कठिन होता चला जाएगा, There may be frustration, और बहुत ही दबाव और संघर्ष हम पर आएंगे, you know, that try to come into our lives. और वो हमारे जीवनों में प्रवेश करना There will चाहेंगे, be perplexing situations. और हमें परेशान करने वाली परिस्थितियां आएंगी, They seem to prevail in our lives. और वो ऐसे लगेगी कि हमारे जीवनों पर प्रभावित हो रही हैं। You know, what I'm trying to say is that it would look that we are being pressed so hard in this way. और हमें ऐसा लगने लगेगा कि इस मार्ग में हम इतने दबाव के साथ दबाए जा रहे हैं। And why all this pressure and these things in the way? The enemy's one intention is that we may give up. और वो दबाव और कठिन परिस्थितियां वो शत्रु क्यों लाएगा इस हमारे मार्ग में? Yes. कि वो चाहता है कि हम इस मार्ग को छोड़कर हट And जाएं। that is what the enemy's design is. और यही उस शत्रु का की मनसा है। You know, and he works very hard towards this. और इस विषय में वो बहुत ही कठिन कार्य कर रहा है, प्रयास Remember, कर रहा he है। is a workaholic. और वो काम करने वाला बहुत ही You know, he is काम करता है। 24/7. और वो 24 घंटे और 7 दिन काम करता You know, है, he doesn't rest in any way. और किसी प्रकार से वो आराम नहीं करता। He is planning and working out ways by which somehow you and I may give up and walk out of this call and this way. और वो ऐसे षड्यंत्र रच रहा है, योजनाएं बना रहा है कि किसी न किसी प्रकार से आप और मैं इस मार्ग में चलने से रुक And जाए। all that he has in his mind is that we abandon this path
that we are walking today. और उसके मन में केवल एक ही बात है कि हम जिस मार्ग में अग्रसर हैं इसको छोड़कर हट But जाएं। remember, saints, the ways of the enemy are numerous. और इस बात को स्मरण करें कि उस शत्रु के जो तरीके हैं वो अनगिनत हैं, They are numerous. वो अनगिनत हैं। And as Paul has predicted in 2 Timothy 3, we are living in those times, and our going is becoming difficult. और जैसे कि पौलुस ने Our walk is becoming दूसरे difficult. तिमोथी तीसरे अध्याय के अंदर कह दिया है कि हम अब उस समय में चल रहे हैं और हमारा चलना कठिन होता जा रहा है। And in this hour and time, we need to be a people with a sense of urgency in our own spirit. और इस वर्तमान समय में हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा में बहुत ही सतर्क हो जाएं। And so the enemy's strategy is और उस शत्रु की चाल ये है to somehow paralyze us कि वो किसी in न this walk, किसी तरीके से हमें इस चलन के अंदर, हमारे चलने में हमें रोक दे to make us give up, और हमें ऐसा बना दे कि हम छोड़ने को to तैयार हो put जाएं us out of the way, और हमें इस मार्ग से हटा दे। to put us out of the way into which God has brought us. और जिस मार्ग में परमेश्वर ने हमें डाला है उस मार्ग से वो हमें हटाना चाहता है, That's what his intentions are. और उसकी मनसा यही है। As I said, in these times, और जैसे मैंने कहा कि इन समयों के अंदर in these perilous times, और इस बिगड़े हुए समय के अंदर when there is stress and trouble in every place, और जब के तनाव और कष्ट हर एक स्थान में हम देखते people हैं are utterly self-centered, और लोग जो है स्वार्थी बन चुके हैं everything is unfavorable for God's people, और हर एक चीज जो है वो परमेश्वर के लोगों के बिल्कुल विपक्ष में है। and then there is specific pressures on God's people और in our own lives. हमारे खुद के जीवनों में परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक विशेष दबाव है There are situations, और परिस्थितियां हैं perplexities. और परेशानियां हैं। In the midst of all that, इन सारी चीजों के बीच में God is at work. परमेश्वर भी कार्यशील है। We need to move on regardless of all these things that would happen around us and in our own lives. हमारे चारों ओर जो भी चीजें हो रही है हमारे खुद के जीवनों के अंदर भी हमें चाहिए कि हम इस मार्ग में One बने रहें। scripture that the Lord brought to my mind was, और एक वचन जो कि प्रभु ने मेरे मन में लाया, again, we need to have a God-initiated vision within our hearts, और हमारे dominating our life. परमेश्वर का बनाया हुआ वो दर्शन जो है वो हमारे हृदयों पर प्रभावित रहे। We have heard so much about vision, और दर्शन के विषय में हमने बहुत कुछ सुना है and so often we quote about vision, और दर्शन की अक्सर हम चर्चा करते हैं, and yet we see how much we need a God-initiated vision that would sustain us in the way in our lives. और फिर भी हम देखते हैं कि कितनी अधिक आवश्यकता हमें उस दर्शन की है जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने की थी In और these हमारे hard जीवनों में times, कितनी इस कठिन समय में in the आवश्यकता है times of stress and strain and troubles. और इस कष्ट के समय के अंदर, दबाव के समय के अंदर और संघर्ष के समय में। Take with me an example again in the book of Luke and chapter 2. लूका की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में एक और उदाहरण। Here we read about a man in chapter 2. और यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं। We know, we have read that portion and referred several times. और इस वचन को हमने कई बार हमने पढ़ा और बताया है। And something the Lord began to minister afresh. परंतु एक ताजा रूप से प्रभु ये बात हम पर ला We रहा read है। here in verse 25. और 25वें पद के अंदर हम We देखते will हैं, read from 25 to verse 35. 25 से 35 वचन तक हम देखेंगे। Yes. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel,
and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms, and blessed God, and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. We thank God for these precious verses here. और इन बहुमूल्य वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद Now देते here हैं। we read about a man called Simeon, और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिमियन था, उसके and we know that the word Simeon means hearing. और हम जानते हैं कि सिमियन शब्द का अर्थ है सुनना। You know, when we look at this man's life, और जब इस व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं, you know, there's several things the Lord spoke and ministered to my own heart. और कई बातें थी जो कि प्रभु ने मेरे हृदय से की। You know, the times when we look at those times, और जब उन समयों को हम देखते हैं, we see that they were not good times, तो हम देखते हैं कि वो समय And अच्छे नहीं थे easy times. और आसान समय नहीं थे। Although Simeon and Anna, they were old, और सिमियन और ऐना दोनों बूढ़े हो चुके थे। one thing we see in their lives was this. और उनके जीवनों में एक चीज जो हम देखते हैं वो You ये, know, we see that they had a vision. और हम देखते हैं कि उनके पास एक दर्शन था, A vision which meant something so precious in their own lives. और वो दर्शन उनके जीवनों में उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य था। You know, though they were at the end of one phase of their life, और जब के अपने जीवन के वो एक अंतिम क्षणों के अंदर थे, you know, they were also living at a time of a new beginning in their own lives. तो उसके साथ साथ अपने जीवनों में एक नई शुरुआत में भी वो जी रहे थे। You know, they were at the end of one phase. और एक फेज के वो अंत में पहुंच चुके थे, They had a new beginning in their hand. और अब उनके सामने एक नई शुरुआत थी, Something more ahead of them. और कुछ ऐसी वस्तु जो उनसे बहुत आगे थी, Something more ahead of them than ever before, or whatever they had before in their lives. और जो कुछ उनके जीवन में पहले था उससे भी आगे बढ़कर एक नया चरण उनके सामने था। Something much higher and something more precious. और कुछ ऐसी वस्तु जो बहुत ही ऊंची और बहुमूल्य थी। And as we look at their times, और जब उनके समय को हम देखते हैं, we see their times were hard times. और हम देखते हैं कि उनके समय भी बहुत ही कठिन समय थे। You know, God had stopped speaking to Israel. और परमेश्वर ने इस्राएल से बात करना बंद कर दी थी। Between the book of Malachi and the book of Matthew, और मलाकी की पुस्तक से लेकर मत्ती की पुस्तक तक 400 years God never spoke to
God's people. इन 400 सालों की अवधि में परमेश्वर ने अपने लोगों से कभी बात And we नहीं know की। how the book of Malachi ends. और हम जानते हैं कि मलाकी की पुस्तक किस प्रकार से God was होती है, unhappy with his people. और परमेश्वर अपने लोगों से नाराज था। But he also ended that book with a great promise और उसने उस पुस्तक का अंत भी एक बहुत बड़ी वाचा के साथ किया that he would send a man who will turn the hearts of the people to their God. और कि वो एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो कि उसके लोगों के हृदयों को अपने परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे। Then we see 400 years of long silence. और हम देखते हैं कि 400 वर्षों की लंबी अवधि की चुप्पी थी। And as we open the New Testament, और जब नया नियम हम खोलते we हैं read about men like Simeon. तो फिर ऐसे व्यक्तियों को हम देखते हैं जैसे सिमियन था। You know, very encouraging to see people like Simeon and Anna. You know, men who and women who had a link with the living God in their lives. और बहुत ही उत्साहजनक बात ये देखने को मिलती है कि सिमियन और ऐना जैसे पुरुष और महिला जो थी जिनका संपर्क परमेश्वर के साथ था, वो ऐसे समय में भी You know, थे। something sustained them through those hard and stressful times. और कुछ ऐसी वस्तु थी जो उन्हें इतने कठिन और तनाव वाले समय के अंदर भी उसने बना के रखा। You know, seeing what God has for His people is so important in our lives. और हमारे जीवनों में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए क्या है। You know, what is upon the heart of God for us in our lives to see God's purpose is so essential in all of us. परमेश्वर के हृदय पर हमारे लिए क्या कुछ है और हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के इस योजना को हम जानें। And this is something we cannot ignore. और ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हम दरकिनार नहीं कर You know, many सकते। times, you know, we can be part of a crowd, you know, a group of people here. और बहुत सी बार हम भी एक लोगों के झुंड में हो सकते हैं यहाँ, But that's not going to sustain us in our trials. परंतु वो हमारी परीक्षाओं के अंदर हमें बनाए In the नहीं times रखेगा। of stress and trouble, और उस दबाव और तनाव और कष्ट के समय के I अंदर, want to say this with all my heart. और मैं अपने पूरे मन से इस बात को कहता हूँ, We may have the church, हमारे पास कलीसिया हो we may have सकती the है, saints to pray for us, और हमारे पास परमेश्वर के भक्तजन होंगे जो प्रार्थना but we करेंगे need हमारे a लिए। vision, saints of God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें एक दर्शन की आवश्यकता We है। can say that we have a body of believers here और हम ये कह सकते हैं कि विश्वासी जनों की एक देह हमारे who पास है, pray with us and pray for us, और जो कि हमारे साथ और हमारे लिए प्रार्थना करते who may हैं, stand with us, जो हमारे साथ खड़े but रहेंगे, that cannot take the place of a God-given vision in our lives. परंतु वो उस स्थान का नहीं ले सकते जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दर्शन हमारे जीवनों में है। Because the days are such, saints, क्योंकि ऐसे दिन हैं ये, days of stress and trouble, और वहां पर कष्ट और तनाव है, hard to deal and hard to bear. उसका सहन करना और उसमें कार्य करना You know, बहुत the कठिन है। enemy is not going to spare those who would really walk in the ways of God. और शत्रु जो है वो उनको नहीं छोड़ेगा जो वास्तव में परमेश्वर के मार्गों में There are रहते हैं। difficulties, there are situations. और वहां पर परिस्थितियां और कठिनाइयां अवश्य हैं, And we need to know that we need more than just our people around us who can pray and strengthen us. और इस बात को हमें जान लेना है कि हमारे चारों ओर जो लोग हैं जो हमारे लिए हमें मजबूत करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना We करते हैं, need them, we करते हैं, thank God for them. उनके आवश्यकता में है और परमेश्वर को But we उनके लिए need धन्यवाद देते something हैं। more than that in our lives. परंतु उससे भी अधिक हमारे जीवन में And that is a God-given vision in our lives. और वो परमेश्वर का दिया वो दर्शन है जो हमारे जीवन में है, You know, and that will sustain us और वो ही हमें बनाए रखेगा। through such times. और ऐसे समयों के अंदर Our life, हमारा जीवन, our activities, हमारे कार्य, they must be ruled by something far higher than, you know, mere routines. और उनका नियंत्रण जो है जीवनों का, वो रूटीन से अधिक बढ़कर कुछ ऊंची वस्तु में होना चाहिए। It has to be sustained by a God-given vision. और उसने
परमेश्वर के दिए हुए दर्शन से ही बने रहना है। something so important for the times in which we are. और वो वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है समय के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। Yes. Our activities are not limited to certain, priorities we have made in our lives. और हमारी कार्य जो है वो हमारे कुछ प्राथमिकताओं से जो हमने अपने जीवन में बनाई है उनके द्वारा नहीं है। For example, we have our weekly coming together. और जैसे कि उदाहरण के रूप में साप्ताहिक सभाएं जो हमारी है, These are our activities, spiritual activities. ये हमारी आत्मिक कार्य हैं। And these coming together is not just for the present. और ये एकत्र होना जो है वो वर्तमान के लिए नहीं है, It is for the future. ये भविष्य के लिए है। It is to produce in us something for the days ahead of us. और ये चीजें जो है वो हमारे अंदर कुछ उत्पन्न करने के लिए है ताकि आने वाले दिनों में उसका हम प्रयोग That's why I कर सकें। said that our life and our activities और इसी कारण से मैं कहता हूं कि हमारा जीवन और हमारे कार्य must have a greater significance. और उसका एक बड़ा उद्देश्य होना, It must be ruled by something far higher in our lives. और उसका नियंत्रण कुछ ऐसी वस्तु से होना चाहिए जो कि हमारे जीवन में कुछ ऊंचे स्तर की हो। It is our spiritual eyes must be therefore enlightened in these days. और इसलिए हमारी आत्मिक आंखें इन दिनों में प्रकाशमान होनी चाहिए To see God's purpose. कि परमेश्वर के उस उद्देश्य को देख God's सके purpose in saving us. और परमेश्वर का वो उद्देश्य कि उसने हमें क्यों बचाया, That is the vision. वो ही दर्शन है। God's purpose has to be our vision. और परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो ही हमारा दर्शन होना And चाहिए। this is something that, would sustain us in these moments in our lives. और ये कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवनों में इन क्षणों के अंदर हमें बनाए रखेगी। A vision will always carry us forward beyond the present. और एक दर्शन सदा ही हमें वर्तमान से आगे बढ़ाता रहेगा। That is the quality of a vision. और वो एक विशेषता है इस दर्शन की, That it would carry us onward, कि वो हमें आगे की ओर बढ़ाएगा forward beyond the present. और वर्तमान से आगे बढ़ाएगा हमें। We may have such difficult times in our lives. और हमारे जीवनों में कठिन समय हो सकते हैं, Hard times. और कठोर समय हो सकते हैं, Perplexing situations. परेशान कुन परिस्थितियां हो सकती हैं। And what the enemy wants is that we break down. और शत्रु यही चाहता है कि यहाँ पर हम टूट जाएं, Give up और छोड़ दें, and be paralyzed, और वहीं पर हम निष्क्रिय हो जाएं, or bring us to a standstill in our walk. और हमारे चलने में वो हमें एक जगह रोक दे। But this vision परंतु ये दर्शन carries us forward beyond the present. वो हमें वर्तमान से Beyond the आगे present. बढ़ाता रहेगा। And not only it takes us beyond the present, but adds on something और ना केवल वो हमें वर्तमान से on आगे to our बढ़ाएगा, lives. परंतु कुछ अतिरिक्त वस्तुएं हमारे जीवनों में जोड़ता चला जाएगा। The vision has that power in our lives. उस दर्शन की ऐसी सामर्थ्य हमारे जीवन में है। So here we read about Simeon. और यहाँ पर हम सिमियन के विषय में पढ़ते हैं। And this God-given vision affects our life. और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। That which Simeon heard and saw, और वो जो कि सिमियन ने देखा और सुना, it had manifold effects in the life of this man. इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर उसके कई गुणों का प्रभाव पड़ा। He was an old man, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, had come to the end of his years. और उसके वर्ष पूरे होने वाले थे। People would have said to one another, और लोग एक दूसरे से कह सकते थे, do not be surprised if you would hear one of these days that Simeon is no more. और आश्चर्य नहीं करना यदि आप सुने कि इन दिनों में कि सिमियन अब है नहीं। He was an old man. वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग था, And yet, और फिर भी the vision kept him alive. उस दर्शन ने उसे जीवित रखा।
A God-given purpose kept him alive. परमेश्वर का दिया हुआ एक उद्देश्य ने उसको जीवित रखा। He could not die वो मर because नहीं सका क्योंकि he had a God-given vision of God's purpose. उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ और परमेश्वर के उद्देश्य का दर्शन था। You know, as we read here in chapter 2 of Luke, लूका के दूसरे अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं verse 26, 26वां पद, and it was revealed unto him by the Holy Ghost. Now that is important. और उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट किया गया था। यही It was revealed unto him by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया गया था। You know, and that is the key. और वही इसकी कुंजी है। It is not something that he made up, but there is something he heard. It was revealed to him. और ऐसा नहीं कि उसने कुछ बनाया था खुद से, परंतु कुछ ऐसी वस्तु थी जो उसने सुना था। It was revealed to him by the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर ये प्रकट And था। saints, that is important और परमेश्वर के in our lives. महत्वपूर्ण है हमारे जीवन How में। are we hearing God? और हम परमेश्वर को कैसे सुनते हैं? It is not something that he just picked up from somewhere and began to say, well, that's a very good word. और ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ वचन लेकर कह दिया कि ये बहुत ही भला शब्द है, अच्छा But it was शब्द है। revealed to him by the Holy Ghost. परंतु ये उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया This था। vision is not something which is made of man, और ये दर्शन कुछ ऐसा नहीं जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, but he heard by the Holy Spirit. परंतु उसने पवित्र आत्मा के द्वारा इसे सुना। And this is so vital for all of us. और हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है। You know, we can be part of this body. हम इस देह के एक भाग हो सकते We हैं can hear about vision week after week, और सप्ताह ब सप्ताह दर्शन के विषय में सुन सकते and हैं। yet we do not hear by the Holy Ghost anything in our lives. और फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं सुनते। And therefore there is no vision in our own life. और इसलिए हमारे खुद के जीवन में कोई दर्शन नहीं है। But we are part of a company who has a vision. परंतु हम एक ऐसे झुंड के भाग हैं जिनके पास दर्शन है। But that is not going to do anything to us. परंतु उससे हम पर कोई असर नहीं। How often we have seen people struggling because, and sometimes they're about to give up this life because there is no vision in their lives. और कितनी बार हमने देखा है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ तक के छोड़ देने को भी तैयार हो गए हैं, और कारण यही था कि उनके जीवनों में कोई दर्शन नहीं। Sometimes it surprises me. और कई बार मुझे आश्चर्य होता है, People who look so potential, और ऐसे लोग जो इतने योग्य दिखते हैं given for many years और कई वर्षों से इसमें in the लगे हैं things of the Lord. प्रभु की चीजों में, But when situations, circumstances came, they crumbled, they were broken, and they gave up. परंतु जब परिस्थितियां उनके पर आई तो वो टूट गए और बिखर गए और उन्होंने छोड़ दिए। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, So it is not enough that we are sincere and we come week after week और ऐसा and have our spiritual activities. कि हम वफादार हैं, सप्ताह ब सप्ताह आते हैं और अपनी अपनी आत्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। You know, we have activities, हमारे पास कार्य है, but परंतु there is nothing that is governing those activities. कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कि उन कार्यों का नियंत्रण कर रही We है। come weekdays, और साप्ताहिक दिन we come Sundays, इतवार को आते हैं we intently hear the word of God, और हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते आते हैं, but there is nothing beyond. परंतु इससे बढ़कर आगे कुछ नहीं। You know, those activities are not preparing you for something beyond because there is no real vision in you. और वो सारे कार्य जो हैं वो आपको आने वाले समय के लिए तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि वो दर्शन आपके पास है। Everything ends with the activity. और सारे कार्य जो है वो सब कार्यों से ही समाप्त Listen हो therefore, जाते हैं। saints of God. और इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों से You know, there must be a God-given vision. परमेश्वर का दिया हुआ एक दर्शन होना आवश्यक है। It was revealed to him by the Holy Spirit. और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात प्रकट And की this गई। has to be true of each one of us as individuals. और हम में से प्रति एक जन के साथ
यही होना चाहिए व्यक्तिगत रूप For से। example, उदाहरण के you रूप में go through a trial in your own life. आप अपने खुद के जीवन में एक परीक्षा में से The गुजरते church हैं can pray for you 24 hours. और 24 घंटे कलीसिया आपके लिए The प्रार्थना saints can be around you to encourage you. और आपके चारों ओर परमेश्वर के भक्तजन आएंगे But in आपको that उत्साहित करें। situation, परंतु उस परिस्थिति में it is what is within you is so important. कि आपके भीतर क्या है उसका अधिक महत्व है। There are times when people in situations are ready to give up. और ऐसा समय आता है कि परिस्थितियों के अंदर लोग छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं And many have given up. और बहुतों ने छोड़ भी दिया है। So we need more than saints around us. और इसलिए परमेश्वर के भक्तजनों के अलावा हमें और भी कुछ We would need more than, people who can pray and strengthen us. और उन लोगों से भी अधिक जो हमारे लिए प्रार्थना करके हमें दृढ़ कर सकते हैं, उससे भी We अधिक। thank God for all these provisions. और इन सारे प्रबंधों के लिए परमेश्वर का But धन्यवाद what we करते हैं। need, परंतु हमारी more than all these, a vision revealed to me by the Holy Spirit. इन सब चीजों से अधिक एक Yes. दर्शन की आवश्यकता है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किया We can be counseled, हमें सलाहें दी जा we can सकती be हैं ministered to. और हमें बतलाया जा Don't doubt God, परमेश्वर पर trust in संदेह God. परमेश्वर पर We भरोसा can करो। share our testimony. हम अपनी गवाहियां बांट सकते हैं You go. And the individual is left back again in doubt and fear. और आप ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं और वो व्यक्तिगत जो है वो फिर संदेह और Saints भय of में God. रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, We need a God-given revelation and vision. हमें चाहिए कि Gospel. परमेश्वर का दिया हुआ प्रकाशन और दर्शन हमें प्राप्त हो। The days are stressful days, और ये दिन जो आ रहे हैं बहुत ही कठिन आ रहे हैं days of trouble. और जो कि कठिनाइयों के दिन हैं। Yes. And we need a revelation, और हमें a एक प्रकाशन vision की of आवश्यकता है God's purpose. और एक दर्शन की आवश्यकता है जो कि परमेश्वर के उद्देश्य का Not of man, but of the Spirit of God. मनुष्य की का नहीं परंतु परमेश्वर की And- आत्मा का। And here Simeon, what did he hear? और यहाँ सिमियन ने क्या सुना That he should not see death कि वो मृत्यु को नहीं देखेगा before he had seen the Lord's Christ. जब तक कि वो परमेश्वर के मसीह को नहीं That was देखेगा। very, very specific. और वो बहुत ही विशेष बात That थी। he should not see death until he had seen the Lord's Christ. और वो मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक कि परमेश्वर के मसीहा को वो ना देख ले। And I'm sure when this word came, it was difficult for the natural man to accept. और मेरा पूरा विश्वास है कि जब ये वचन आया होगा तो प्राकृतिक मनुष्य को इस पर विश्वास करने के लिए कठिन A होगा। man of old age. और एक व्यक्ति जो कि बूढ़ा है Naturally it is impossible to accept a word like that. और प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के वचन को स्वीकार करना बहुत ही कठिन A है। man of old age. और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आयु का व्यक्ति है, बुजुर्ग है। But when we consider Simeon, परंतु जब हम सिमियन को देखते although he was a man of old age, he was a man of seeing. That made all the difference. और यद्यपि वो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, फिर भी वो एक ऐसा व्यक्ति था जो देख सकता था। यही वो अंतर था जो उसमें आया। So negative a thing working in his body. और एक नकारात्मक वस्तु उसके शरीर में क्रियाशील है। So real in his life. और उसके जीवन में इतनी Every वास्तविक है। day he is fighting with old age in his life. और हर रोज अपने जीवन में उस बूढ़ी आयु के साथ वो लड़ रहा है। Difficult with great difficulty he makes it to the temple of God every day. और हर रोज परमेश्वर के भवन तक बड़ी कठिनाइयों से वो आता है। And there comes the word, you shall not see death until you have seen the Lord's Christ. और वहीं पर उसको वचन प्राप्त होता है कि तू मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक कि तू परमेश्वर के मसीहा को ना And देखे। negative things so real in life. और एक नकारात्मक वस्तु जीवन में कितनी वास्तविक हो गई। Not only so real, but pressing. और ना केवल इतनी वास्तविक परंतु इतनी दबाव डालने वाली। Amen? Are you with me? And negative things so much working and pressing this man's life. At the same time, a great positive factor was ruling his life. और एक नकारात्मक वस्तु इतना दबाव उसके जीवन पर Amen? डाल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक सकारात्मक शक्ति भी उसके अंदर कार्य कर रही Yes. Now Simeon was an old man. थी। सिमियन एक बूढ़ा व्यक्ति था। Yes. And that was a negative factor in his life.
और वो एक नकारात्मक तत्व था उसके जीवन के लिए। Yes. But it may be different with us. परंतु हमारे साथ ये विभिन्न हो सकता है। Our problem may be so different from Simeon's situation. हमारी समस्या सिमियन की परिस्थिति से बिल्कुल विभिन्न हो सकती है। He was a man of old age. वो एक बूढ़ी आयु का व्यक्ति था। You may say that I'm a man of problems. आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास समस्याएं ही, You know, I am a man of unending problems. और ऐसी समस्याएं जिनका अंत ही नहीं होता है। What do you need to say? परंतु आपने But कहा I'm a है, man of seeing. मैं एक देखने वाला व्यक्ति भी हूं। And that's how we have to see our lives. और इसी प्रकार से हमने अपने जीवन को देखना That है। is how Simeon was. और वैसे ही सिमियन भी था, A man of old age, और एक बूढ़ी आयु का a व्यक्ति था, negative thing working in him और एक नकारात्मक वस्तु उसके जीवन में and कार्य कर रही pressing him. और उसको दबाए डाल रही But he थी। said, I'm a man who sees. परंतु उसने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति भी हूं जो देख सकता है, Man who is seeing. और एक ऐसा व्यक्ति जो देखता है, Man of seeing. देखने वाला व्यक्ति। I'm a man of problems. और मैं एक समस्याओं का व्यक्ति हूं, But I'm a man of seeing what is upon the heart of God. परंतु मैं ये भी देख सकता हूं, देखने वाला व्यक्ति हूं कि परमेश्वर के हृदय पर क्या है। Man of seeing what is upon the heart of God. देखने वाला व्यक्ति के परमेश्वर के हृदय पर क्या है। You may be a woman of many problems in your life. और आप एक ऐसी महिला हो सकती हैं जो कि आपके जीवन में कई A woman of many situations in life. और एक ऐसी महिला जिसके जीवन में बहुत सी But you परिस्थितियां हो, ought to be a woman of seeing. परंतु आपने एक ऐसी महिला भी बनना है जो। Saints, we all have on one side many negative things in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और तो हम सबों के पास नकारात्मक It वस्तु may not be the हमारे जीवन- same for all of us. और हम सबों के लिए एक समान नहीं But हो, there are negative things. परंतु नकारात्मक वस्तुएं हैं, Amen. Pressing us. हमें दबा रही हैं, So real in our lives. और इतनी वास्तविक है हमारे जीवन, Real issues in our lives. और हमारे जीवन के अंदर एक वास्तविक It विषय may be different from person to person. हर व्यक्ति से वो विभिन्न होंगे, अलग होंगे, But one common thing we all should have is परंतु एक ही कॉमन चीज जो है वो हम सबों के we are a man of seeing and a woman of seeing. हम एक ऐसे पुरुष हैं जो देख सकते हैं या महिला That है जो was देख true of Simeon. और ये बात सच्ची थी सिमियन के लिए। You know, negative things in our lives, नकारात्मक वस्तुएं हमारी जीवन में, they are true. और वो सच They are real. और वास्तविक They है, are pressing. वो दबा रही हैं, There is stress. और तनाव है, There are troubles. और कठिनाइयां और कष्ट But- है, The man of seeing. परंतु एक देखने वाला व्यक्ति, Man of seeing. देखने वाला व्यक्ति, Saints of God. परमेश्वर के There is प्रिय, great power in that seeing. उस देखने में एक बड़ी सामर्थ्य है, There is great power in that seeing. उस देखने में बड़ी सामर्थ्य है। I want to say this with all my heart. और मैं अपने पूरे मन से इसको I'm not a great man, मैं कोई महान व्यक्ति but I नहीं, can say with little experiences परंतु अपने छोटे अनुभवों के that there is great power in seeing. कि देखने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। I would confess with all my heart that to all of us. और ये अपने पूरे हृदय से मैं अंगीकार There is करता हूं great सबको। power in seeing. और देखने में बड़ी सामर्थ्य है। Maybe many things are pressing you. There are many negative things and they are realities in your life. बहुत सी वस्तुएं आपको Stress. दबा रही हैं, Strain, और तनाव है, challenges, और चुनौतियां हैं, many things. बहुत सी वस्तुएं आपके जीवन हाँ। पर हैं, You and I ought to be men and women of seeing. परंतु आपने और मैंने ऐसे And पुरुष और महिला seeing. बनना है जो देखें, There is great power in that seeing. और उस देखने में एक महान शक्ति या सामर्थ्य है। Yes. We thank God for the body. हम प्रभु की देह We के लिए thank उसका God for the धन्यवाद करते हैं। brethren who care for us. और हमारे जो They are the counselors. Help us. अगुवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें सलाहें देते हैं और हमारी सहायता करते हैं, और The प्रार्थना church करते हैं। that stands with us. और Praise God. कलीसिया जो हमारे साथ खड़ी रहती है। What would sustain us? और लेकिन कौन सी चीज है जो हमें बनाए That रखेगी? positive power that will work in us. और वो सकारात्मक सामर्थ्य जो हमारे भीतर कार्य करेगा, And we must have that in our lives. और उसको हमारे It जीवन was revealed to me by the Holy Spirit. और ये मुझ पर पवित्र आत्मा के द्वारा It प्रकट was किया गया। revealed to me by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। You know, that cannot be substituted by और anything or for उसका anything. विकल्प कोई वस्तु नहीं बन सकता। There's power in that seeing. और उस देखने में एक सामर्थ्य है, It thrusts him forward.
और आगे बढ़ाने की शक्ति। This vision would thrust you and me. It will give you momentum when it almost is coming to a standstill. और ये Because of दर्शन pressure. जबकि हम बिल्कुल रुकने के Yes. छोर पर पहुंच चुके हैं, Yes. तो ये दर्शन हमें सामर्थ्य देगा Oh, और आगे I want to say, brothers and sisters, और मैं कहना चाहता हूं भाई और there is great power in sin. देखने में बहुत बड़ी It सामर्थ्य है will thrust you और वो आपको आगे Forward. आपकी गति बढ़ाने में सामर्थ्य करेगा, मदद करेगा। when it is almost coming to a halt. और जबकि बिल्कुल रुकने की तैयारी हो रही है, Situation, circumstances परिस्थितियां और वातावरण holding you back. आपको पीछे रोक रहे हैं And the momentum is almost coming to an end. और वो गति जो है वो बिल्कुल अंत में पहुंच चुकी है। Seeing has a great power. देखने में एक बड़ी Thrust सामर्थ्य है, you forward. वो आपको आगे बढ़ाएगा And hold that death back. और वो जो मृत्यु है उसको पीछे रोके रखेगा And thrust you forward. और आपको आगे बढ़ाएगा। To hold back those things that are trying to hold you back. And thrust you forward. और वो वस्तुएं जो आपको पीछे रोक रही हैं उनको वो रोक देगा और Yes. आपको आगे बढ़ाएगा। Oh, that's the power. वो एक सामर्थ्य है There's a power in this seeing, saints of God. और इस देखने में एक बड़ी सामर्थ्य है। It would hold back that is trying to hold you back and cause you to move forward. Only a vision can do that, saints. और एक दर्शन ही ऐसा Power है जो in the seeing. शक्तियां आपको रोक रही हैं वो उनको रोक कर Hallelujah. आपको आगे बढ़ाने की सामर्थ्य Yes. देगा। Making that situation rather a servant, making that situation a servant rather than a lord over you. और उस परिस्थिति को बजाय इसके कि वो आपका स्वामी बन जाए, वो आपका दास बना दे। Yes. The trouble will turn out to be a servant. और वो कष्ट जो है वो आपके लिए दास का रूप हो जाएगा। It's not difficult. और ये कठिन नहीं है It's not difficult times. और ये कठिन समय नहीं है। Yes, they are difficult times. कठिन समय तो आएंगे At the same time, और उसके साथ साथ God will turn them. परमेश्वर God उन्हें will उलट turn देगा। them. परमेश्वर उन्हें उलट देगा। They will become a servant, serving something, accomplishing something in our lives. और वो हमारे लिए दास बन जाएंगे और हमारे जीवनों में कुछ Yes. करेंगे वो। As Paul says, और जैसे पौलुस times कहता है, of stress and trouble are set in. और वो समय जो कि तनाव और दबाव के हैं वो How much more in these last days we need to be governed by a God-given vision of His purpose. तो कितना अधिक इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के दिए हुए दर्शन के नियंत्रण में Here is रहना a चाहिए। man, Simeon, और यहाँ पर ये व्यक्ति सिमियन है and here we find that death had to wait. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्यु को इंतजार करना पड़ा, Could not hold him back. वो उसे पीछे नहीं रोक सकी, But that vision held death back and thrust him forward. परंतु उस दर्शन ने जो परमेश्वर के दिया हुआ था उसने मृत्यु को पीछे कर दिया और उसको आगे बढ़ाया। Maybe Simeon had to tell, oh death, you have to wait. और हो सकता है कि सिमियन को कहना पड़ा कि हे मृत्यु, तेरे को इंतजार करना You पड़ा have to wait for the Lord's time in my life. और प्रभु के समय का इंतजार तुझे करना पड़ेगा मेरे Yes. जीवन के लिए। Vision kept this man moving forward. उस दर्शन ने ही इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया It kept him alive, और उसको जीवित रखा and he transcended all the ordinary courses. और जितने भी मामूली जो दिशाएं थी उन सबों को बदल डाला helping him to master them all in his daily life. और उसकी सहायता की कि अपने जीवन के दिनों में वो उन पर स्वामी बन जाए। Even in our daily lives, हमारे प्रतिदिन के जीवन में it may not be old age. और ये हो सकता है कि बूढ़ी आयु It may be a physical problem in our body. और या हमारे शरीर के अंदर कुछ शारीरिक It समस्या हो may be सकती है situations in our या lives. हमारे जीवनों में कुछ परिस्थितियां हो सकती है। It could be anything. I don't know what is your कुछ situation. भी हो सकती है, मैं नहीं जानता कि आपकी I don't know what is your stress and strain and struggle. कि आपका दबाव और तनाव और संघर्ष किस चीज में है। But one thing I can say to all of us, परंतु एक चीज मैं हम सबों को कह सकता हूँ, if we have
received that vision by the Holy Ghost into our lives, और यदि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा उस दर्शन को अपने जीवन में प्राप्त we किया will transcend all those ordinary causes. और वो जो साधारण कारण है उन सबों को हम बदल सकते हैं Those things we will transcend, we will overcome them. और उन सबों पर हम जयवंत हो सकते हैं. They would not master over our lives. वो हमारे जीवन का स्वामी नहीं बन सकती. In our daily lives, हमारे प्रतिदिन के there जीवन are में things. चीजें हैं. In the life of Simeon, there were many real issues. सिमियन के जीवन में भी वास्तविक विषय थे. He was old, not enough strength to walk. वो बूढ़ा था और उसके बाद इतनी सामर्थ्य Many, नहीं many निकलने की. situations perhaps. बहुत सी परिस्थितियां शायद, But he transcended them all. परंतु उन सब पर वो विजय प्राप्त All the हुई. ordinary causes in his life. और जितने भी वो साधारण कारण थे उसके जीवन के, He mastered over them. उन सबों पर वो स्वामित्व बना. That vision kept him moving every day. क्योंकि उस दर्शन ने जो उसके पास था प्रतिदिन उसको All the आगे बढ़ने की situation was सहायता की. pressing him. और यद्यपि वो परिस्थिति उसे दबा रही थी, He moved on. फिर भी वो आगे बढ़ता गया. And I want to tell you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय if लोगों, we have heard of the Holy Spirit in our lives, और यदि हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सुना है, if God has given us a vision of God's purpose, और यदि परमेश्वर ने उसके उद्देश्य का दर्शन हमें दिया है, and we are bound up with the realization of that vision, और हम उस दर्शन की वास्तविकता से बंधे हुए हैं, in some measure, the Lord will preserve that vessel. तो किसी न किसी हद तक परमेश्वर उस पात्र को सुरक्षित I would रखे. say this once again. और मैं इसको फिर से कहूंगा, If God has given you and me a vision, और यदि परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक दर्शन दिया है, and we are bound up with the realization of that, और हम उससे पूरी रीति से बंधे और ज्ञात हैं, realization of the fulfillment of that vision, और उस दर्शन के पूरे होने का पूरा ज्ञान हमें है, in some measure, that vessel will be preserved until that work is done. और किसी हद तक उस पात्र को सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो. Amen? You want to receive this word? क्या आप इस वचन को स्वीकार करना चाहते हैं? Until that work is done, और जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो, God will preserve that vessel. परमेश्वर उस पात्र को सुरक्षित It is His रखेगा. word. ये उसका वचन है. This is true of even men like Daniel. और ये बात डैनियल जैसे व्यक्तियों के लिए भी, Many men in God's word. परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत से, Even the life of the Apostle Paul. और यहाँ तक कि पौलुस प्रेरित के जीवन Yes, में भी this is God's principle. ये परमेश्वर का नियम. If God has given a vision, और यदि परमेश्वर ने दर्शन, and we are bound up with the realization of that vision, और हम उस दर्शन के ज्ञान से बंधे हुए, in some measure, और किसी हद that तक vessel will be preserved उस पात्र को सुरक्षित रखा until जाएगा that work is done. जब तक कि वो कार्य पूरा ना Yes, हो. He will. वो करेगा. It is God's promise. ये परमेश्वर When we की वचन है. turn to Psalms 118, we referred that before. और जब हम भजन संहिता और 118 अध्याय की ओर आते हैं, 118, we read the psalmist saying here, और वहां पर हम देखते हैं कि भजन संहिता का लेखक कहता है, and verse 17, 17वां वचन, I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. मैं मरूंगा नहीं परंतु जीता रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा. The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. और परमेश्वर ने मेरी इतनी तंबिया और ताड़ना की है, लेकिन मेरे को मृत्यु के हवाले नहीं Praise किया. God. परमेश्वर की स्तुति हो. This is the testimony of David. और ये दाऊद की गवाही है. This is a testimony of the psalmist that the Lord has not given him over unto death. और ये उसकी गवाही है कि प्रभु परमेश्वर ने उसको मृत्यु के हवाले नहीं किया. I shall not die but live.
मैं मरूंगा नहीं परंतु जीऊंगा। You know, there's a purpose that governs our lives, saints of God. और एक उद्देश्य है जो हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है परमेश्वर You know, के so we see here that God will sustain us. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बनाए रखेगा Our vision is going to govern and sustain our lives. और हमारा दर्शन जो है वो ही हमारे जीवनों को सुरक्षित रखेगा और नियंत्रण करेगा। Yes. Situations, circumstances, परिस्थितियां और वातावरण, pressures, दबाव, many things in our lives we बहुत सी see वस्तुएं हमारे जीवनों में हम देखते in our हैं day-to-day life. हमारे प्रतिदिन के जीवन के But the अंदर, promise is परंतु वाचा परमेश्वर की God है, will help us to transcend over them परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि उनके पर हम विजयी होंगे in our everyday life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में। That is His promise. ये उसकी वाचा है This vision will give us the power to do that. और ये दर्शन हमें वो सामर्थ प्रदान करेगा कि हम There is ऐसा कर पाएंगे there's power in that scene. और उस दृश्य के अंदर उसकी सामर्थ का And प्रयोग may होगा। God help us this morning. परमेश्वर आज सुबह हमारी सहायता करें। So, in other words, you and I have to be possessed of a vision of God's purpose. और इसलिए हम देखते हैं कि आपने और मैंने परमेश्वर के उद्देश्य के उस दर्शन में ही व्यस्त You रहना know, है। it's not just hearing things from God's word. और ये केवल परमेश्वर के वचन से बातों को या वचन को सुनना ही You नहीं know, है। what we hear become a revelation and a vision in our spirit. और जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारी आत्मा के अंदर एक प्रकाशन और दर्शन बन जाता है So that our life is bound up with that. ताकि हमारा जीवन जो है वो उसमें बंध जाए। Yes. As I said in the past, और जैसे हमने पहले कहा, many who have been here in the house of God, बहुत से जो इस परमेश्वर के भवन में थे, several who have been here, कई जो कि यहाँ पर थे appreciating the word, और वचन की प्रशंसा करते talked थे, about the word and the वचन की vision, चर्चा करते थे और दर्शन की चर्चा करते but थे, broke in the times of pressures परंतु दबाव के अवसर पर वो टूट गए and gave up. और छोड़ दिया। So they appreciated the word, उन्होंने वचन की प्रशंसा की but didn't hear it by the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सुना नहीं। Now that's where the problem is with many. और वहीं पर बहुतों के साथ यही समस्या है। Because we are intellectual people, और हम बहुत ही बुद्धिमान लोग we can hear and perceive things intellectually. और हम वस्तुओं को सुनकर अपने मस्तिष्क में उसे ले We सकते हैं think we have the vision. और हम समझते हैं कि हमारे पास But दर्शन that है, is not vision. परंतु वो दर्शन That नहीं is है mere intellectual understanding, and it cannot hold you in times of pressure. और वो केवल हमारी बुद्धि की cannot. समझ है और वो दबाव के अवसर पर हमें रोक It नहीं cannot do anything. और वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। So, saints of God, परमेश्वर के प्रिय I लोग, would once again say and emphasize और एक बार फिर मैं कहकर इस बात पर जोर the डालूं, need for a Holy Ghost given vision in our lives. एक बड़ी आवश्यकता के पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दर्शन Thank God हमारे for the जीवनों में saints होना of God. चाहिए। हम परमेश्वर का We thank धन्यवाद God for करते the हैं उस लोगों brethren के responsibility. और जो जिम्मेदार भाई लोग हैं उनके लिए The धन्यवाद church that would stand with us in time. और कलीसिया जो के आवश्यकता के समय पर हमारे साथ खड़ी हो। God would sustain us परमेश्वर हमें बनाए with रखेगा a vision in our lives. और वो केवल दर्शन है हमारे जीवन, That's what we need in our lives. उसी की आवश्यकता We हमें thank अपने God for जीवन में। every other provision of God in our lives. और परमेश्वर के बाकी सारे प्रबंधों का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे We जीवन में cannot सब, substitute the vision with anything. परंतु इस दर्शन का विकल्प हम किसी दूसरी वस्तु से नहीं We कर can सकते, never substitute it for anything. किसी चीज से इसका विकल्प नहीं कर सकते। So may God help us. परमेश्वर सहायता करे We need to possess a vision, और हमें a एक God-given vision, परमेश्वर of का God's दिया हुआ purpose. दर्शन हमें अपनाना है so that our life is bound up with that ताकि vision. हमारे जीवन उस दर्शन से बंध जाए। And there is a tremendously vitalizing effect about that true spiritual vision. और एक अद्भुत जीवनदायक सामर्थ्य है उस दर्शन के अंदर जो Tremendously हमें आता है। vitalizing effect. और उस About that जीवनदायक true असर जो था, spiritual प्रभाव जो था, सिमियन को प्राप्त Yes. था। Vitalizing effect in our lives. और एक जीवनदायक प्रभाव जो हमारे जीवन पर होना Yes. चाहिए। That vision links us with God.
वो दर्शन हमारा संपर्क Oh, परमेश्वर that के is साथ करता tremendous. है। और बहुत अद्भुत बात That vision links us with God and His purpose. वो दर्शन परमेश्वर और उसके उद्देश्यों से हमें संपर्क हमारा You know बनाता what है। a precious thing. और कैसी बहुमूल्य वस्तु है ये। You know, all the time हर समय to be conscious that we are in link with God and His purpose. हम हर समय सतर्क रहें कि हम परमेश्वर और उसके उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। What a tremendous thing that is. और कैसी अद्भुत वस्तु है। All the time that you are conscious that you are linked with God and a work of God in the earth. और हर समय इस बात से हम सतर्क हैं कि हम परमेश्वर से संबंधित हैं और उस कार्य से जो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर है। That God is doing something in the earth, that I am linked with that work. I tell you, it's a tremendous thing. कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ कर रहा है और मेरा संपर्क उस कार्य से है, वो एक बहुत ही अद्भुत Oh, it is a great encouraging factor in our lives. और एक बहुत ही महान उत्साहित करने वाला। I may not be doing a great work, हो सकता है कि कोई बड़ा काम मैं ना कर रहा but हूँ, I am part of a great work. परंतु एक महान कार्य का एक भाग So that's very difficult for some to accept. और ये बहुत कठिन। If I am part of a great work, I must be doing a great work. और यदि मैं उस महान कार्य का एक भाग हूं तो एक महान कार्य भी करूंगा। But to know परंतु ये जानना we are linked with a great work that God is doing in the earth today. कि हम एक महान कार्य से जुड़े हुए हैं जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आज कर रहा है। Oh, what a releasing thing in our spirit it is. और कितना हमें छुड़ाने वाला एक कार्य है आत्मा में That I am linked with God कि मैं परमेश्वर से बंधा हुआ and His work in the earth. और उसके कार्य से जो इस पृथ्वी पर वो कर रहा And है। so God is doing a work in my life. और इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में एक कार्य कर रहा है I am linked with His work. क्योंकि मैं उसके कार्य से I am संबंधित linked with the work of God in the earth. और इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर का कार्य हो रहा है उससे मेरा भी संबंध है। A vision links us with God and His purpose. एक दर्शन हमें परमेश्वर से और उसके उद्देश्य से संबंधित कर देता है। As we heard some time back, or 2 Sundays back, 2 सप्ताह पहले हमने it's सुना। not that we go to the church or to the house of God week after week, और ऐसा नहीं कि हम सप्ताह ब सप्ताह परमेश्वर के भवन में या कलीसिया and में that it is repeated. और ये बार बार दोहराया जाता है। What is it all about? और ये किस विषय में है सब कुछ? Why are we coming together? हम एकत्र क्यों होते हैं? And I tell you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के in the लोगों, absence of a vision, एक दर्शन के अनुपस्थिति में a Holy Ghost imparted vision, और एक पवित्र आत्मा का दिया हुआ दर्शन, this coming together will become just a routine. और हमारा एकत्र होना उसके बिना एक रूटीन है It becomes just a routine. और केवल एक रूटीन बन जाता है ये। And certain small situations, और छोटी छोटी परिस्थितियां, there are people who opt even stop coming. और ऐसे भी लोग हैं जो कि आना ही बंद कर देते हैं। There are many reasons. उसके लिए बहुत से कारण होते हैं। I want to tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, the absence of a vision उस दर्शन का अनुपस्थित होना would take out that real link from our lives. वो हमारा संपर्क जो वास्तविक है हमारे जीवन में, उससे हमें अलग कर देंगे। Vision, a Holy Ghost given vision, links us with God and His purpose. पवित्र आत्मा का दिया हुआ वो दर्शन हमें परमेश्वर और उसके उद्देश्य से बांध देता है। As I said, when situations are unfavorable in our, not favorable in our lives, और जैसे मैंने कहा कि जब परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे पक्ष में नहीं होती they are unfavorable in our lives, और वो विपक्ष में होती हैं, and we are wearing out because of struggles and situations, और हम परिस्थितियों और संघर्षों से थक कर
थक जाते हैं There are frustrating situations. और परेशान कुन परिस्थितियां हमारे ऊपर हैं, There is resistance from every side. हर ओर से हमारे लिए रुकावटें हैं You are feeling the hardness of the way in your life. और उस मार्ग की कठोरता को अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हैं Difficulties are raising up their heads. और कठिनाइयां आपके सामने खड़ी होती जा रही हैं Problems one after the other is coming in the way. और समस्याएं एक के बाद एक आपके मार्ग में आ रही हैं। Saints, परमेश्वर के प्रिय लोगों, it's only a vision that can help us to go. ये केवल वो दर्शन है जो हमें आगे बढ़ाने में And सहायक है it will preserve us. और वो हमें सुरक्षित रखेगा, It will link us with God वो हमारा संबंध परमेश्वर से and with बनाएगा God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य। So I would urge us तो मैं विनती करूंगा हम to be open to the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा के लिए हम खुल जाएं that we come into a vision of God and His purpose. ताकि हम परमेश्वर और उसके उद्देश्य के एक दर्शन में There are आ many जाएं। things in our lives, बहुत सी वस्तुएं हमारे जीवन but में, there is another positive reality if there is a vision in our lives. परंतु यदि हमारे जीवन में वो दर्शन है तो एक सकारात्मक वास्तविकता भी है। Like Simeon, सिमियन की तरह, it gives us an incentive in our lives. और उससे हमें एक अतिरिक्त वस्तु In हमारे the जीवन midst में of प्राप्त many होती है। negative things working and pressing us, जबकि बहुत से नकारात्मक वस्तुएं हमें दबा रही हैं और हमें रोक रही हैं, it kept him फिर भी walking with God. परमेश्वर के साथ चलता In that old age, उस बूढ़ी आयु में, in those difficult days, उन कठिन दिनों में, things which are negative in his body, और वो वस्तुएं जो उसके so much देह के pressing अंदर him down, नकारात्मक है और उसे दबाए जा रही he है, kept walking with God. वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। Yes, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, We need something as Simeon had in his life हमें भी कुछ ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो कि to सिमियन के keep पास उसके us जीवन में, walking when things are negative. कि जब वस्तुएं नकारात्मक हों तो Yes. वो हमें चलने में सहायक होता है। Oh, we know how much it is true और हम जानते हैं कि ये बात कितनी in सच्ची times है of pressures, और दबाव के difficulties. अवसरों और कठिनाइयों में, Even to pray becomes difficult. और यहाँ तक कि प्रार्थना करना भी मुश्किल हो जाता है, Everything is against our time with God. और हर एक वस्तु जो है हमारा समय जो परमेश्वर के साथ होता है There उसके is- विरुद्ध हो जाता है, There is the drag and the drain in our lives. और वहां पर वो सूखापन और हमारी जो अस्थि होती है There is सब that निकल जाता है pressure और दबाव आते हैं। unless we have heard by the Holy Spirit. जब तक कि हम पवित्र आत्मा द्वारा सुन न लें, We shall not be able to walk with God. तो तब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, We will not be able to love the Lord और हम प्रभु से प्रेम भी नहीं कर पाएंगे and maintain that walk with God. और परमेश्वर के साथ में उस चलन को बनाए नहीं रख I पाएंगे। say this with all my heart. मैं अपने पूरे मन से इसको कहता हूँ, You know, God has laid this burden on my heart this morning. और आज सुबह परमेश्वर ने ये बोझ मेरे हृदय पर डाला है। We need a hearing by the Holy Ghost in these days. हमें चाहिए कि इन दिनों में पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने, A vision by the Spirit within us. और एक दर्शन जो कि आत्मा के द्वारा हो हमारे बीच में आए। Yes. As I said a while back, जैसे कुछ क्षण पहले मैंने कहा, to always have that feeling and to walk in that consciousness that I'm linked with God and His purpose. हर समय हमारा एहसास यही हो और उसी में हम व्यस्त हों कि मैं परमेश्वर और उसके उद्देश्य से संबंधित हूँ, It brings in a tremendous peace within, और इससे एक अद्भुत शांति भीतरी भागों में आती है, a tranquility within your being. और एक शांति प्राप्त होती है आपके अंदर के भागों में। This perception that God has committed Himself to something great. और ये विचार कि परमेश्वर ने अपने आप को किसी महान वस्तु के कार्य के लिए दिया हुआ है, That you and I, we are bound up with that great work. और आप और मैं उस महान कार्य से बंधे हुए हैं। Yes, that's what happened with Simeon. और यही बात सिमियन के साथ हुई, You know, that perception he received of the Lord. और प्रभु का वो विचार जो उसे प्राप्त हुआ That the Lord is about to bring forth something, कि प्रभु कुछ लाने वाला है, and that Simeon is, you know, himself is bound with that. और सिमियन स्वयं उस वस्तु से बंधा हुआ है।
he was drawn closer to God. और वो परमेश्वर के और निकट खिंचता You चला know, गया। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, you know, this vision will draw us closer to God. ये दर्शन And हमें nearness. परमेश्वर के निकटता में लाएगा You know, you will experience a nearness to God. और आप अनुभव करेंगे कि आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। Many times we think, बहुत सी बार हम so and सोचते so हैं, is near to God. और वो फला फला परमेश्वर के I निकट am है very, very far from God. और मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। Who said that? किसने ये कहा? You said that. आपने कहा। But if you have a vision, परंतु यदि आपके पास it is दर्शन going है, to draw you closer to God. तो वो आपको परमेश्वर के निकट लाए। And nearness is your portion and mine. और निकटता जो है वो आपका और मेरा एक भाग है। And that's what Simeon felt. और यही सिमियन ने महसूस A किया, nearness to God. परमेश्वर के साथ निकटता। Live nearer to the Lord than ever before. और पहले से अधिक प्रभु के निकट रहना। And not only that, न केवल इतना, that nearness brought in a faith to him and a strength to walk with God. और वो निकटता जो थी उससे उसे एक विश्वास और सामर्थ्य प्राप्त हुई Yes. कि वो परमेश्वर के साथ चलता Oh, रहा। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, nearness to God परमेश्वर के साथ is going to निकटता, bring a strength to us to walk with God. वो हमें एक सामर्थ्य प्रदान करेगा कि And हम so, परमेश्वर के साथ what चलें। we read here in chapter 2, और इसलिए दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ते you हैं? know, this is what we read about Simeon और यही हम सिमियन के विषय में पढ़ते हैं। in chapter 2 and verse 25. दूसरा अध्याय लूका का और उसका 25वां वचन। Verse 27 it says, sorry, verse 27, and he 27वां वचन। by the Spirit into the temple. और वो आत्मा के द्वारा मंदिर में आया। And he came by the Spirit. आत्मा के द्वारा आया। Yes. He came by the Spirit. into the आत्मा के temple. द्वारा आया मंदिर में। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। Many times we hear about walking in the Spirit. बहुत सी बार आत्मा में चलने के विषय में हम सुनते We हैं। hear so much about walking and living in the Spirit. बहुत कुछ अधिक सुनते हैं, चलना और रहना, जीना आत्मा में। But remember, saints of God, परंतु एक चीज को स्मरण करें, it is परमेश्वर only a vision can help you to walk in the Spirit. केवल दर्शन ही है जो आपकी सहायता कर सकता है कि आप आत्मा में And live in by the Spirit. और आत्मा में ही जिए। It was revealed to him by the Spirit, आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था and so he came by the Spirit. और आत्मा के द्वारा ही वो आया। Remember that. इस बात को स्मरण You know, it takes a Spirit-imparted vision to help us to walk in the Spirit. आत्मा के द्वारा दिया गया दर्शन ही है जो हमारी सहायता कर सकता है कि हम आत्मा में And live in the Spirit. और आत्मा में जिए। For him coming to the house of God was no routine. उसके लिए परमेश्वर के भवन में आना कोई रूटीन नहीं था कि Yes, it was no routine. कोई रूटीन नहीं था कि जरूर जाना है। For Simeon, coming to the house of God was not a routine. सिमियन का परमेश्वर के भवन में आना कोई रूटीन नहीं था, He came by the Spirit. वो आत्मा के द्वारा आया। For many people on Sunday, coming to the house of God is a routine. बहुत से लोगों के लिए रविवार को परमेश्वर के भवन में आना एक रूटीन बन गया है। Yes. So they come. और इसीलिए वो आते हैं। But not come by the Spirit. परंतु आत्मा के द्वारा नहीं आते। You know, many things become routine in our lives. बहुत सी चीजें इसी प्रकार से एक रूटीन बन जाती है हमारे Because जीवनों में। There is no true vision of कारण things of God. यही है कि परमेश्वर की वस्तुओं के अंदर वो सच्चा दर्शन हमें प्राप्त No नहीं है। true vision. कोई सच्चा दर्शन नहीं है। For Simeon, nothing was routine. He सिमियन came in by the कोई चीज Spirit. रूटीन नहीं था, वो आया तो आत्मा के द्वारा Yes. आया। Many things, our weekly coming together is routine for some. कुछों के लिए हमारा साप्ताहिक एकत्र होना रूटीन बन गया है। But I thank God for some who come with
such a longing for these gatherings. परंतु मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो बड़ी तीव्र इच्छा को लेकर आते They are हैं। coming by the Spirit वो आत्मा के द्वारा आते हैं with expectations. और बड़ी आशा को लेकर आते हैं। So we come without any expectations because we are not coming by the Spirit. There is no true vision that is holding us. और इसलिए आते तो हैं, लेकिन कोई आशाएं हमारे पास नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वो दर्शन हमारे पास नहीं है। God is ever willing to help us. परमेश्वर सदा ही चाहता है कि वो हमारी सहायता करे। You know, God can open our spiritual eyes. परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल सकता There है, must be a desire and longing in our hearts. परंतु हमारे हृदय में उसके लिए एक इच्छा होनी We must be open and exercising our spiritual gifts. और हमें खुला रहना चाहिए कि हम आत्मिक वरदानों का प्रयोग करें। Oh, may God help us. परमेश्वर सहायता करें। As we move on, the next thing I want to share is और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात मैं बताना vision चाहूंगा। brings a strong prayer life. It will bring a strong prayer life. Prayer. और दर्शन जो है एक दृढ़ प्रार्थना का जीवन लाएगा You हमारे। know, when we look at these scripture portions here, और जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं you know, we see that both Simeon and Anna, they were people of prayer. जब इन वचनों में हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सिमियन और ऐना दोनों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। You know, we see in verse 37 like this, 37वें वचन में हम पढ़ते हैं, and she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. और वो 84 वर्षों से बेवा थी, परंतु वो मंदिर को छोड़कर नहीं गई, Now, दिन रात what was नहीं she रही। doing there in prayer? तो वो वहां प्रार्थना में क्या कर रही थी? She continued in fasting and praying, वो उपवास और प्रार्थना में निरंतर लगी in रही supplications day and night. और दिन रात वो विनतियां करती रही। Thank God she didn't start a prayer tower. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कोई प्रेयर टावर शुरू नहीं किया। She did not start with the Anna prayer tower, 24 hours. और एना प्रेयर टावर के नाम से Now, 24 listen घंटे का to प्रेयर things. टावर नहीं शुरू किया है। Here was this woman there, day and night, fasting and praying. और यहाँ पर इस महिला को हम देखते हैं जो दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना And what करती was रहती she थी। praying? और वो क्या प्रार्थना कर She रही was थी? praying along with that which, you know, she was praying in line with what was revealed to her. और जो कुछ उस पर प्रकट किया गया था उसी विषय में वो प्रार्थनाएं करती थी। You know, she was caught up with what she saw by the Spirit. और जो कुछ उसने आत्मा के द्वारा देखा था उसी में वो व्यस्त थी। I am not saying that we have not to intercede for others. और मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के लिए विनतियां नहीं करनी But, चाहिए, you know, it is different thing to pray and come to God with supplications. और ये अलग It is बात different है। from intercessions. और विनतियां करना और प्रार्थना करनी दूसरों के लिए ये अलग अलग चीजें हैं। You know, praying and supplications before the Lord is one thing, intercession is another thing. और परमेश्वर से किसी खास विषय की विनती करना और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी परमेश्वर के समूह को अलग अलग चीजें हैं। But we need to know the highest is to be caught up with God's purpose and given to that prayer and supplications that God's purpose may be fulfilled. परंतु सबसे अति उत्तम वस्तु ये है Yes. कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम प्रार्थनाएं करते रहे, उससे विनतियां करें। There is place for intercession, और दूसरी प्रार्थनाओं के लिए आवश्यकता but unfortunately today everybody is caught up with the needs of the people today. परंतु दुर्भाग्य की बात यह है प्रत्येक जन जो है आज लोगों की आवश्यकता को But लेकर you look at प्रार्थना करते हैं। God in the Bible, परंतु बाइबल में परमेश्वर के भक्तजनों को they देखें, were caught up with God's purpose in prayer. वो प्रार्थना में परमेश्वर के उद्देश्यों से बंधे Whether it थे। was Daniel, चाहे वो डैनियल था or it was John, या यूहन्ना or it was Paul, या पौलुस था, we see और हम देखते हैं their prayer was that the purpose of God may be fulfilled. हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे किए जा सकें। You know, so vision brings us to a place of travail and prayer.
और वो दर्शन जो है वो हमें एक पीड़ा और प्रार्थना के स्थान में पहुंचाता है। Prayer is being caught up with what God is showing you or me in relation to His purpose. और प्रार्थना किस लिए? कि परमेश्वर उसके उद्देश्य को जो दिखा रहा है हमें, उसके विषय में प्रार्थना। Not just needs. न केवल आवश्यकताएं, Oh, needs are plenty. बहुत सी all around. आवश्यकताएं हैं और चारों ओर हैं, But here was Anna, परंतु यहाँ पर ऐना थी caught up with. जो God. व्यस्त थी परमेश्वर। And, how can I say that it is so true about her is, see the verse 38. और 30वें वचन को देखो। And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spake of him. That tells us that she was not caught up with a prayer tower. और वो उसी घड़ी वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। Yes. हाँ. और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे का इंतजार थी जो थे, उसके लिए विनतियां करने लगी। And spake of him to all them. और उनकी बातें उसने सबको कही। And spake of him. और उसके विषय में बातें She was की। caught up with this. और वो इसी That से was revealed to her. वो चीजें जो उस पर प्रकट की गई थी, उसी की उसने चर्चा Yes. की। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, You know, it's going to bring a different type of prayer. और into our वो lives. और ये एक बिल्कुल अलग प्रकार की प्रार्थना Saints, हमारे जीवनों में। You and I need a motive to sustain or maintain our prayer. और आपको और मेरे को एक नीति की आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थना को उस प्रकार से बनाएं। Otherwise, our prayer will become mechanical. और नहीं तो हमारी प्रार्थना जो है वो Our prayer will मैकेनिकल become something obligatory. और कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो आभारी रहेगी, एक नियम सा बन जाएगा। Obligatory prayers. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, Vision brings in a strong prayer life to दर्शन us. एक बहुत ही दृढ़ प्रार्थना, And yet हमें not लाता। something for ourselves, और फिर भी अपने लिए कुछ नहीं, but travailing together with God. परंतु परमेश्वर के साथ में एक पीड़ा में आना, That God's purpose is brought forth. ताकि परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा हो। Yes, something that would maintain our prayer. कुछ ऐसी वस्तु जो हमारे उस प्रार्थना को बनाए रखेगी। Listen to this. Prayer is maintained in the strength of a vision. प्रार्थना जो है वो दर्शन के सामर्थ्य में Yes. बनी रहती है। And may God help us to understand this. परमेश्वर सहायता करे कि इस बात को हम समझ जाएं। You know, being caught up. You know, I tell you, it's a reality that a heavenly vision, a God imparted, Holy Ghost imparted vision is something very powerful. एक स्वर्गिक दर्शन I don't know पवित्र आत्मा to say के more द्वारा than दिया this. गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और In सामर्थ्य little measures, और छोटे छोटे हद what तक I've experienced सीमित रूप sharing से with us, जो मैंने अनुभव किया है, seeing has the power. और देखने में It has सामर्थ्य, the power उसमें सामर्थ्य to sustain us, कि वो हमें to बनाए cause us रखे to transcend over things. और हमें सहायता करे कि हम चीजों पर विजय Yes. हो सके। Now, one other thing that I want to share is that a vision would bring us into accountability. और एक और चीज जो बतलाना चाहता हूँ कि एक दर्शन जो है हमें लेखा जोखा देने के सामने लाएगा, Accountability. कि हमें कुछ हिसाब देना है। You know, it would cause us and save us from drift and diversions in our lives. और वो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने जीवनों में भटके ना और बहाव में ना निकल जाए। Yes. It will save us from satanic snares. और शैतान के फंदों से वो हमें बचाएगा। We will become accountable people. और हम एक उत्तरदायी It brings लोग होंगे accountability. और उससे एक उत्तरदायित्व आती है। Will save us from nominalism. और जो साधारण
वाद है उससे हमें बचा देगा। Nominalism. नामधारीवाद कह सकते हैं। You know, many times I've seen और बहुत सी बार मैंने देखा है people arguing with the things of God. लोग परमेश्वर के वस्तुओं में अपने आप को देते हैं, Arguing their opinions into the things of God. और अपनी राय लाते हैं और बहस करते हैं, वाद विवाद करते And हैं। finally they say, there's no harm in it, brother. और अंत में कहते हैं इसमें कोई हानि की बात नहीं। No accountability. और उनके अंदर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। But a vision परंतु एक दर्शन will never let you in that state. एक दर्शन आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में It जाने नहीं brings देगा। in tremendous accountability in your own life, और इससे एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व हमारे जीवनों में आती है, wherein you are a responsible person. जहाँ पर कि हम एक उत्तरदायी व्यक्ति बन जाते हैं। You sense that accountability within. और आप उस उत्तरदायित्व को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। You are responsible for yourself. और आप अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं। How often we have seen saints of God not responsible in their own lives. और अक्सर ही हमने देखा है कि परमेश्वर के भक्त जन जो है अपने जीवन में खुद के लिए That only उत्तरदायी tells होते us हैं। the lack of a true vision. और वो यही हमें बताता है कि एक सच्चे दर्शन की कमी है। Not responsible, not accountable. और वो उत्तरदायी नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते। It talks about the vision seem to be weak in our lives. और जिसका अर्थ ये होता है कि वो दर्शन हमारे जीवनों में बहुत ही दुर्बल है। We are not seeing rightly and properly. और हम सही ढंग से देख नहीं सकते। There must be a sharpening of our seeing in these days. और इन दिनों में हमारा देखना भी एक तीव्र देखना होना When we look into चाहिए। the life of the Apostle Paul, और जब हम पौलुस प्रेरित के जीवन what do you देखते हैं, read in तो वहाँ हम क्या Acts पढ़ते हैं? chapter 26? प्रेरित के कामों की पुस्तक और उसके Acts 26वें chapter अध्याय 26, में, what he says before King Agrippa. You know that verse. और वो राजा अग्रिपा के सामने क्या कहता आप जानते हैं उस वचन Yes, को। he says in verse 19 like this. 19वां पद, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. कि हे राजा अग्रिपा, मैं उस स्वर्गिक दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। He says, I was accountable a man. और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो उत्तरदायी था। I could not live the way I want to live. और जिस प्रकार से मैं जीना चाहता था, I could not go by the opinions of others. और दूसरों की राय पर मैं नहीं चल सकता। I could not go by the arguments of others. और दूसरों का जो वाद विवाद था उसके तो Because what I saw made me accountable. क्योंकि जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे उत्तरदायी बना दिया। Amen? What I saw made me accountable a man. और जो कुछ मैंने देखा उससे मैं एक उत्तरदायी व्यक्ति बन गया। I gave myself to it. और मैंने अपने आप को उसमें I could not but give myself to it. और मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय इसके कि अपने आप को उसके लिए दे दूं। It brings in an accountability in our lives. और उससे हमारे जीवनों के अंदर एक उत्तरदायित्व आता है। Accountability in our lives. हमारे जीवनों में एक उत्तरदायित्व। He was a man of destiny. और वो एक मंजिल का व्यक्ति था। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, how are you आप कैसे हैं in your spiritual life? अपने आत्मिक जीवन? What kind of member are you in the house of God? आप किस प्रकार के सदस्य हैं परमेश्वर के Are भवन में? you a member who is accountable, responsible? क्या आप एक in ऐसे life? सदस्य या अंग हैं जो कि उत्तरदायी है परमेश्वर के भवन में? Saints, परमेश्वर के प्रिय we लोगों, must exercise this vision in our lives. हमें चाहिए कि इस दर्शन का अभ्यास अपने जीवनों में करें। No one can give us this vision but the Lord. और कोई हमें ये दर्शन नहीं दे सकता सिवाय प्रभु के। You know what we read in the book of Luke? और लूका की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? See what we read in verse 30. Luke chapter 2 and verse 30. लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय It says, mine eyes समावचन, have seen thy salvation. और वो कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। No one can give you the vision but the Lord. और कोई दर्शन नहीं दे सकता परंतु प्रभु। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देख लिया। Yes.
Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देख लिया। I tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूँ, what happened to Paul. यही बात पौलुस के साथ हुई। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। It's a very strong expression of an experience. अनुभव का एक बहुत ही कड़ा Mine अभिव्यक्ति। eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। Saints, that has to be our experience. और ये हमारा अनुभव होना चाहिए। It's not enough that our spiritual leaders see. और इतना काफी नहीं कि हमारे आत्मिक अगुवा देखें। You must be able to say, mine eyes have seen. आप भी कहने के योग्य होए कि मेरी आंखों ने देखा है। And this was the prayer of Paul, और यही पौलुस की प्रार्थना थी, even for others. दूसरों के लिए भी। His prayer for the Ephesians was this. और इफिसियों के लिए उसकी प्रार्थना He यही said that थी। I am praying for you. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए Every प्रार्थना time I करता हूं। remember, I pray for you, और जब जब मुझे स्मरण होता है तो मैं तुम्हारे लिए that your प्रार्थना करता हूं spiritual eyes may be enlightened. कि तुम्हारी आत्मिक आंखें प्रकाशमान हो जाए। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा है। In other words, Paul says, your eyes must also see. और दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि It तुम्हारी is not आंखें enough भी देखें। that I इतना have काफी नहीं, seen. इतना काफी नहीं कि मैंने देखा है, You must also see. परंतु तुमने भी देखना है। That's my prayer. यही मेरी प्रार्थना है। You know, Simeon heard from God. सिमियन ने परमेश्वर से सुना। Amen? Yes or no? Yes. He heard of God. उसने परमेश्वर से सुना It was revealed to him by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ने उसको ये बात प्रकट की। And not that after that Simeon closed up all that faculty. और ऐसा नहीं कि उसके बाद उसने वो सारी योग्यता जो उसकी I have heard from the Lord. मैंने प्रभु से सुन लिया। Fine, wonderful. We'll see someday something happening. बहुत अच्छी बात है, कभी कुछ देखेंगे, किसी दिन कुछ होगा। Simeon exercised his spiritual eyes. परंतु सिमियन ने अपने आत्मिक आंखों का Amen. अभ्यास किया He came to the temple by the Spirit. और वो आत्मा के Exercise. द्वारा उस मंदिर पर आया। It was no अभ्यास more किया। routine things. और उसके लिए कोई रूटीन की बात Came by नहीं the थी। Spirit. ये आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई। And then he took the child in his hand. और तब उसने उस शिशु को अपने हाथों में लिया For mine eyes have seen. और कहा कि मेरी आंखों ने अब देख लिया है। Amen? Amen? Do you understand that? Oh, yes, brother. I've been coming to this church for many years. हाँ भाई, मैं कई वर्षों से कलीसिया में आता हूँ। I've heard. मैंने सुना है। But afterwards what? और उसके Put पश्चात the क्या? shutter down. शटर बंद कर दो। Never heard afterwards. उसके बाद सुना ही नहीं। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, We are responsible to exercise और उत्तरदायित्व ये है what we have heard of the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा से जो कुछ हमने सुना है Walk in it. उसमें चलना है, Live in it. उसमें जीना है, Exercise in it. उसका अभ्यास करना। That will bring us again to another place where we'll say, mine eyes have seen. और वही हमें उस स्थान में लाएगा जहां हम कहेंगे कि मेरी आंखों ने देखा है। Eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा है। You could never say that आप ऐसा कभी कह नहीं सकते if you had not received a revelation. यदि आपने उस प्रकाशन को प्राप्त नहीं किया है, If you are not taught by the Spirit. और यदि आत्मा ने आपको सिखाया नहीं है। We can only say हम केवल यही कह सकते हैं when the Spirit has done something in us. जब आत्मा ने हमारे भीतर कुछ कार्य किया है। May we say in these days, इन दिनों में हम यही कहने के योग्य हों, I want to be taught of the Spirit. और मैं चाहता हूं कि आत्मा मेरे को सिखाए। I want to walk in the Spirit. मैं आत्मा में चलना चाहता I want to exercise my spiritual faculty. हूं और अपने आत्मिक योग्यताओं का अभ्यास करना चाहता हूं। I am open, O God. और मैं खुला हुआ हूं You परमेश्वर। know, that is so necessary. और ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। A God-given vision परमेश्वर का दिया हुआ will दर्शन help us वो हमारी सहायता करेगा continue to exercise कि हम our निरंतर spiritual रूप से faculties. अपनी आत्मिक Our योग्यताओं spiritual का faculties. अभ्यास करें। that there will be progressive
beholdings in our lives. कि हम निरंतर रूप से देखना हमारे Mine जीवन में eyes आएगा। have seen. और मेरी आंखों ने देखा है। And I want to tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता if हूँ, your eyes have seen, nobody can take it away from you. और यदि आपकी आंखों ने देखा है तो कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता। Amen? That is why a witness is so important. और इसी कारण से गवाही बहुत ही महत्व रखती My eyes have seen. है। और मेरी आंखों ने देखा I है। tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, no one can take it out of you. तो कोई भी शक्ति आपसे इसको What you have seen can never be taken out of you by anybody. जो कुछ आपने देखा है वो कभी भी कोई व्यक्ति Amen? आपसे ले नहीं Amen? सकता। Nothing can destroy that. और कोई भी वस्तु उसका नाश नहीं कर सकती। As seeing has a great power. देखने में बड़ी सामर्थ्य है। Isn't it true concerning Abraham? क्या अब्राहम के विषय में ये बात सच्ची नहीं He थी? saw it from far. और उसने बड़ी दूर से उसे देखा। What a tremendous power that seeing had. और उस देखने का कैसी बड़ी सामर्थ्य उसे प्राप्त थी। He saw it from far. और उसने दूर से उसे देखा And he counted himself to be a stranger and a pilgrim. और अपने आप को एक अजनबी और यात्री के रूप में What a power that seeing had. और उस देखने में कैसी बड़ी सामर्थ्य Nothing थी। could destroy that seeing. और उस देखने को कोई भी चीज विनाश नहीं Not कर सकती। tribulation, और कष्ट तकलीफें भी, not poverty, और ना ही गरीबी, no situations. कोई परिस्थिति This is नहीं। what Paul says. और यही पौलुस कहता है, Nothing could separate me from the love of God. कोई भी चीज प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती, I have seen. क्योंकि मैंने उसने I have देखा, seen this God. मैंने इस परमेश्वर को देखा Saints है। of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Nothing can destroy that which you have seen. जो कुछ आपने देखा है उसका विनाश कोई चीज नहीं कर Yes. You know why? क्यों? It becomes a part of your being. वो आपका व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है। It becomes a part of my being. और वो मेरे व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है। And that is true of all of us. और वही बात हम सबों के लिए सच्ची है। And saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, That is crucial. और वो ही बहुत ही एक A नाजुक crucial point in a day like this. और एक बहुत ही नाजुक बिंदु है एक ऐसे दिन में। I'm going to close here today. और यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। It's crucial in a day like this. आज के दिन की तरह ये बहुत नाजुक बात है Yes. That we have a vision. कि हमारे पास एक दर्शन है। We must be able to recognize. और हम इस बात को, ये योग्य हो कि हम इस बात को माने और पहचाने। We may be able to recognize the need for a vision where we can say, mine eyes have seen. और हम इस बात को पहचान लें और कह सकें कि मेरी आंखों ने देखा है। Yes. Greatest need in our lives. और बहुत ही बड़ी A आवश्यकता हमारी, furtherance of that. और उसका An आगे बढ़ना, ongoing beholding of things. और वस्तुओं को और बढ़कर देखते रहना। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा है। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, It has been revealed by the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। That's it. यही वो चीज है, That's the vision. वही दर्शन है, That which the Holy Spirit opens your eyes to behold and your ears to hear. वो जो कि पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलता है कि आप देखें और आपके कान खोलता है कि आप सुने। I tell you, it is so real. और मैं ये कहना चाहता हूँ, we ये have बिल्कुल seen. वास्तविक है And it becomes a part of our life. और ये हमारे जीवन का भाग बन जाता है, An inseparable part of your life. और एक ऐसा भाग जो आपके जीवन से अलग नहीं किया जा It सकता। is a part of my being and your being. और ये एक भाग है आपके व्यक्तित्व का और मेरे And व्यक्तित्व so I come to an end here, और यहीं पर मैं अंत करता हूँ sharing this word with us. और इस वचन को बांटते हुए हमारे You know, साथ। this is the need for all of us. यही हम सबों की We thank आवश्यकता God है for the body. और प्रभु की देह के लिए हम We उसका thank God धन्यवाद for the करते हैं। church. परमेश्वर का धन्यवाद The करते हैं saints of कलीसिया God. के लिए, परमेश्वर के भक्त जनों के Every लिए, encouragement, और हर एक prayer, उत्साहजनक every support. प्रार्थना, हर एक सहायता, but परंतु that will not sustain वो हमें बनाए नहीं in a रख पाए। time like this ऐसे समय के अंदर, of trouble, कष्ट का समय time of stress. और दबाव और तनाव का समय, Hard to bear,
hard to deal. और सहन करना भी कठिन, उसमें कार्य करना भी कठिन। We need a Holy Ghost imparted vision in our lives. हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा का दिया हुआ दर्शन हमारे जीवनों में हो। Otherwise, saints, it is difficult for us to come into that destiny unto which we have been called. और नहीं तो हमारे लिए कठिन होगा कि जिस मंजिल के लिए हम बुलाए गए हैं वहां पहुंचे। Let us be men and women of seeing. और हम देखने वाले पुरुष और महिलाएं हों। And God, और परमेश्वर He doesn't hold back, वो रोक कर नहीं रखता but He वस्तु is को, willing परंतु वो इच्छुक है if we are open in our hearts. यदि हम हृदयों में खुले हैं। You know, that is why the Holy Spirit is given. और वहीं पर पवित्र आत्मा The दिया Holy गया, Spirit is given वो पवित्र आत्मा दिया गया to bring us into the vision of God's purpose. कि हमें परमेश्वर के उस दर्शन और उद्देश्य में लाए। It was revealed to him by the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा May है। the Lord help all of us. परमेश्वर हम सबों की Shall सहायता we all करे। stand up before the Lord as we come to the closing of this? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.